objective. When the answer is the same for everybody, that question is objective. Objective question doesn't mean multiple option question. Sometimes there is no option, okay? Still it is an objective question because only one answer is possible, one word, one sentence, that's one thing. Let's see. I'm opening the page for you. Some and any. I don't have any money. Complete the sentences with some or any. Please. Yes, dear. Come here. Don't have any money. Complete the sentences with some or any. In 2025, I am going to make a few adjustments to my attitude. You know, I have this attitude that my students are grown-up people. So I have to treat them as an adult. Okay, as adults. But now in 2025, I've realized no matter how grown-up you are, when you are in the class, you should be treated as a child because you behave like a child when you are in the class. That's Indian personality, you know. So I will not really think much about this fact that you are 18 plus or 20 plus, 25 plus, doesn't matter. I have to treat you like kids, yeah. And that is what I'm going to do. It's not going to be easy. This boy is a bright student. And I didn't mind him sitting at the back because I knew he was learning everything I was teaching, even there. But I've realized, and now I need to behave like, I'm the guardian, he's a kid, and he needs to do what I need him to do. And that is sit alone, focus on learning for these 90 minutes. Okay, complete the sentences with some or any. The rule is very simple. What's the rule? Some is used in positive sentences and any is used in negative and question sentences. But there is a small catch. There is एक छोटा सा मामला है. क्या है वो छोटा सा मामला? What's that small catch? If that question is not a real question, if it is a request or if it is an offer, in that case, we will use some. Even in the questions, if that question is a request or an offer. So let's find out. Number one, I don't have any money on me. I don't have any money on me, but I have some money in the bank. Good afternoon, sir. I don't have any money on me, but I have some money in the bank. Two, are there any letters for me this morning? Are there any letters for me this morning? Are there any letters for me this morning? Three, I never have any breakfast. Number two, question number two, whenever you read a sentence, आपका अगर दिमाग ठीक ठाक है, okay, तो it's easy कि पढ़ते के साथ आपके जहन में एक पिक्चर उभर आएगी. ये प्रूफ है, एविडेंस है कि आपका जहन ठीक ठाक काम करता है. पढ़ते के साथ एक पिक्चर उभर आनी चाहिए. और अगर वो पिक्चर नहीं उभर आती है
तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। ये मतलब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। फिनिश जैसे ही करते हो ना बोलना, तो आपके जहन में एक पिक्चर उभरनी चाहिए। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग। तो ये कोई पूछ रहा है, अब वो किससे पूछ रहा है भाई? तो हो सकता है अपने फैमिली से पूछ रहा, अपने घर में किसी से पूछ रहा, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग। और ये कब पूछेगा अपनी फैमिली से? अगर उसके फैमिली में किसी ने लेटर बॉक्स खोल लिया है तो वो पूछेगा। ये सब पिक्चर उभरना चाहिए दिमाग में पढ़ने के साथ। और अगर ये सब नहीं उभर रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करेंगे? थोड़ा गहरे देखेंगे, सेंटेंस को 2 बार और 3 बार पढ़ेंगे, और वो पिक्चर को सोचने की कोशिश करेंगे। यही है मेहनत। एक तो अपने आप आसानी से हो जाना चाहिए, या सामने वाले पोस्टमैन से ही पूछ दिया, आया तो पोस्टमैन, हैज एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, गॉट इट। And this conversation is taking place around 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, not 2 o'clock, not 3 o'clock, because at 2 o'clock, 3 o'clock, it's afternoon. So this conversation is taking place before 12. And that's why the sentence is, are there any letters for me this morning? If this conversation was taking place at about 2, 3, 4 in the afternoon, the question will be, were there any letters for me this morning? यही चेंज हो जाएगा। अब वो दिस मॉर्निंग बोल रहा है, और आर है यानी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में बोल रहा है यानी मॉर्निंग में ही बोल रहा है। इफ द पर्सन वॉज सेइंग दिस, आस्किंग दिस क्वेश्चन इन द आफ्टरनून एट 2, 1, 3, 4, सवाल होता है, वर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग? इतना चले अगर दिमाग में, तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, A1 कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। बट इफ इतना नहीं चला आपके दिमाग में, तो आपको सोचना और ज्यादा चाहिए। 3, I never have any breakfast. ये बोलने के बाद फिर पिक्चर भरनी चाहिए, that somebody is talking about their eating habits. हिंदी में ऐसा चलेगा आपके, अगर आप लड़के हो, स्टूडेंट हो, तो आपके ध्यान में चलना चाहिए कोई अपने अपने खाने के बारे में बता रहा है कि अब क्या कैसे खाता है, कब खाता है। वो बता रहा है कि नाश्ता तो वो करता ही नहीं। आई नेवर हैव एनी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई नेवर हैव एनी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ओके। 4, you have, is there anybody here in this class who never has breakfast? Some young people do it because they're very busy in the morning, especially students. They leave home around 6, 7 o'clock in the morning, come home at about 12, 1, and they directly eat something in the afternoon. So anybody here who does this? Do you know anyone who does it? Like doesn't have breakfast in the morning? Those people directly eat in the afternoon, first time. Their first meal is in the afternoon on Sundays. Yeah, on Sundays, your mom doesn't have breakfast. She directly has her meal in the afternoon after she finishes all the work. Yeah. Some people call it brunch. Brunch is a new word with a mixture of breakfast and lunch. BR from breakfast and UNCH from lunch. And it is called brunch. So it's a new term. Some people use it for a meal which you eat around 12, around 11:30, 1, because it's your first meal of the day. You don't like calling it breakfast because breakfast time is 9, 10, 11, right? So some people have it quite late, so they call it brunch, because after that they don't have lunch. It is a mixture of breakfast and lunch. Yeah. I never have breakfast. Or you have some lovely pictures. You have some lovely pictures. Next. An exclamation mark there in number 4. Now again, if you are in the right kind of frame of mind, you know, you should understand that this person is reacting. ये रिएक्ट कर रहा है एक सिचुएशन को,
You have some lovely pictures. This tone is of appreciation. Somebody showed you their album, their collection of photos, either on the mobile or the physical photos in the album. So after watching those photos, after looking at them, you react, wow, you have some lovely pictures. 5. Don't buy any bread. We have lots. The picture should be clear. Maybe the wife is saying to the husband, bread mat लीजिएगा, बहुत सारा है. Don't buy any bread. We have lots. अगर ऐसे समझ पाते हैं, ऐसे सोच पाते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी हेल्थी. यू आर डूइंग 100%. अगर ये नहीं समझ पाते ऐसे और खाली हिंदी करते हैं, डोंट बाय एनी ब्रेड, ब्रेड मत खरीदना, वी हैव लॉट्स, हम लोग के पास है, तो इसका मतलब आप सिचुएशन रिक्रिएट नहीं हुआ आपके जहन में और वो फेलियर है आपका. जब सिचुएशन एक पिक्चर इमेज नहीं क्रिएट होती सेंटेंस पढ़ने के बाद, तो आप सेंटेंस नहीं समझेंगे. सोचना भी मत कि आप समझे हो. कोई कैसे जानेगा कि हम समझ रहे हैं? वो सेंटेंस पढ़े और उसके जहन में क्या आ जाए, पिक्चर उभर आए. डोंट बाय एनी ब्रेड, वी हैव लॉट्स. जो भी पिक्चर आपके नेचुरली उभर आए, इमेज. डोंट बाय एनी ब्रेड, वी हैव लॉट्स. मे बी शॉप पे ही, सुपरमार्केट में ही किसी ने बोला, हस्बैंड या वाइफ ने ब्रेड खरीदने की कोशिश की, गया ब्रेड ब्रेड वाले कॉर्नर में, तो उसने कहा ना ना, डोंट बाय एनी ब्रेड, वी हैव लॉट्स. ये हो गया इमेज. ये हो गया इमेज सोचना और इमेज के हिसाब से समझना. और बाकी ग्रामर इसमें दिखता है. डोंट बाय एनी ब्रेड ग्रामर पढ़ाया गया. वी हैव लॉट्स पता है, वी सब्जेक्ट हैव वर्ब, ये सब पता है हमें. फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. हिंदी इन शब्दों से तो नहीं होगी. हिंदी हमेशा स्पोकन हिंदी इमेज की वजह से होगी. क्या बोलेंगे हिंदी में? हम लोग के पास बहुत है या बहुत है? हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत है. हाँ, वी बहुत जरूरी है. हिंदी में वी बहुत जरूरी, इंग्लिश में वी बहुत जरूरी है. देखो, डोंट बाय एनी ब्रेड, वी हैव लॉट्स. लेकिन इंग्लिश में, सॉरी सॉरी, मैं उलट पलट बोल रहा हूँ. हिंदी बोलते समय आपको वी की हिंदी नहीं करनी है. अगर जो करेगा तो वो वही है जो सीख नहीं पा रहा है या सीख नहीं पा रही है. वो बेचारा परेशान है, वो इमेज क्रिएट कर पाता अपने दिमाग में सेंटेंस पढ़ के. और डोंट बाय एनी ब्रेड, वी हैव लॉट्स. ब्रेड मत लीजिए. लीजिएगा भी हो सकता है और लीजिए भी हो सकता है. घर पे बोल रही है वाइफ, ब्रेड मत लीजिएगा, बहुत है. राइट. रेस्ट शॉप में बोल रही है, सुपरमार्केट बोलेगी ब्रेड मत लीजिए, बहुत है. यही है हिंदी इसकी. इसकी हिंदी ये मत करना, वी हैव लॉट्स, हम लोग के पास बहुत सारा नहीं. ऐसी हिंदी करने वाले कभी इंग्लिश नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं. क्योंकि ये कहाँ बोला जाएगा? जहां बोला जाएगा जिस पिक्चर में, जिस सिचुएशन में, वहां हिंदी में थोड़ी बोलेंगे हम लोग के पास बहुत. खाली हम लोग बोलेंगे बहुत है. और ये बड़ी प्रॉब्लम है. जब आप हिंदी सोचते हो दिमाग में, तो बहुत है आता है. अब इंग्लिश में जिसको आदत है सब्जेक्ट बोलने की, वही वी लाएगा दिमाग में ना. कहाँ से लेके आएगा वी बोलने के लिए, जब हिंदी में दिमाग में चल रहा बहुत है, बहुत है, बहुत है, मन में ही चल रहा है. तो वी वर्ड कैसे आ जाए जब किसी को सेंस डेवलप हो चुका है? वी हैव लॉट्स. आपको मेरी बात समझ में आई है कि क्यों हिंदी और इंग्लिश के शब्द परेशान हो सकते हैं, एक दूसरे को कर सकते हैं? क्योंकि जिसको हिंदी बोलने की आदत है वो बोलेगा बहुत है, मत खरीदिएगा, टमाटर मत लीजिएगा, बहुत है, खराब हो जाता है. बहुत है, फिर खराब हो जाता है. अगले लाइन में खराब हो जाता है के लिए हमें खराब से नहीं शुरू करना है, हमें दे से शुरू करना है, टमाटोज के लिए. डोंट बाय एनी टमाटोज, वी हैव लॉट्स, एंड दे गो बैड. दे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ खराब हो जाता है. खराब का बैड इंग्लिश बहुत आसान था. दे गो बैड.
ओके, दे गो बैड, ओके, दे गो बैड, एकदम सबसे बेसिक इंग्लिश। अदरवाइज दे गो ऑफ, दे गेट रॉटन, दे गेट, बहुत तरह से बोल सकते थे, ठीक है। फाइन। तो दे क्यों आएगा? अगर आपको इंग्लिश की समझ बनी है तो आप शब्दों से तो बोल नहीं सकते थे कि खराब हो जाता है, मैं वे लोग तो है ही नहीं, और आपको दे में देखा हिंदी दिमाग में बैठा हुआ वे लोग, आप क्यों लाएंगे वे लोग अपने मुंह पे इंग्लिश में? दे कहाँ से ले आएंगे? तब जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज सुनने की आदत पड़ गई है, पता चल गया है कि इंग्लिश में एक सब्जेक्ट जरूर रहता है, और आपको पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप टमाटर की बात कर रहे हैं, तो फट से मुंह पे आएगा टमाटर। दे गो बैड, they go bad. Are you getting the idea? Okay. So, if you want to understand English, read and see if you have an image. हर बार, और सबसे अच्छी बात कि इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता अगर आप उस सेंटेंस को समझ रहे हैं तो। मतलब ये नेचुरली होगा। किस कोई आपको गाली दे, गुस्सा लाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है? करना पड़ता है। अगर वो गाली समझ में आ गई हो तो गुस्सा लाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है? गाली समझ ही में नहीं है क्या बोला, उस गाली का मतलब क्या होता है, कुछ अंदाजा ही नहीं लगा, तो गुस्सा आएगा। तो वैसी इमेज भी वैसी आता है, अगर वो सेंटेंस समझ में आया तो नेचुरली आता है इमेज। जैसे गुस्सा नेचुरली आता है गाली समझ में आने पे, कोई आपको गाली दे और आपको समझ में आ गई गाली, फट से गुस्सा आएगा यार। You don't have to make any effort. Similarly, if you understand the sentence, then you naturally get the image. And if you're not getting the image, तो आपको अभी वो सेंटेंस समझ नहीं आया, भले आप उसके शब्दों को समझ रहे हैं लेकिन वो सेंटेंस नहीं समझ रहे दोस्त। Today I had a student for inquiry. I made a sentence. They have a fear of English. मैंने ये बोला उसको, ठीक है, वो बोला नहीं समझ में आया। मैंने कहा दे मतलब, उसने कहा वे लोग। मैंने कहा फियर मतलब तो डर। मैंने कहा बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर भी वो नहीं समझा इस सेंटेंस को। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सेंटेंस के वर्ड समझते हो लेकिन सेंटेंस तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उस सेंटेंस को दोबारा तिबारा पढ़ के अंदाजा लगाना होगा, ओके। और जहां फिर भी ना पिक्चर बने, इमेज ना बने, फिर भी कोशिश करने के बाद, वहां किसका रोल है? टीचर का। आपको अपनी प्रॉब्लम टीचर के पास लानी चाहिए। तो अपने आप को चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जब इस तरह के बोलचाल वाली सेंटेंसेस, ये बोलचाल वाली बातें हैं, सारी बातें बोली गई हैं, हाँ कि ना, ये इसके यहीं से शुरू होगी। लिखे हुए सेंटेंसेस, मेरी बात सुनना, कुछ बातें लिखने वाली होती हैं। जब उनके राज्य में गेहूं की खेती में बहुत कमी आ गई, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये सब बातें जो है ना, ये लिखे जाने की बातें हैं नॉर्मली, राइट। नॉर्मली ये लिखे जाने की बातें हैं। लेकिन कुछ बातें हैं, गेहूं गेहूं खत्म हो गया है, ये बोले जाने की बात है, राइट। पानी नहीं है, ये बोले जाने की बात है, राइट। तो जब इस तरह के सिंपल सेंटेंस आपके सामने आए, वन लाइनर्स, तो इमेज बनाना आपका फर्ज बनता है। नहीं बन रहा इमेज, प्रॉब्लम हो रही है, टीचर के पास जाइए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, टेस्ट करिए अपने आप को कि आप सेंटेंस समझे कि नहीं। किस आधार पे? इमेज बना के नहीं, सेंटेंस पढ़ने के बाद। इमेज बनेगा तो फिर हिंदी भी मुंह से निकल आएगी, उस सिचुएशन में कोई क्या बोला होगा। हम्म। डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? 7. There aren't any shops in my village. Okay. This person says there aren't any shops in my village. Most probably his village is a big village, right? Most probably his village is a big village. चलिए ठीक है, इसीलिए there aren't any shops in my village, है ना? हम्म, so most probably the village is a big village, इसीलिए there aren't any shops, सही है।
ठीक है, दूध से दही बना ना, हाँ फिर दही से दूध बन जाएगा ना, यस सर। बनाया तुमने अभी ना। बिग विलेज में शॉप्स नहीं है ना, मोस्ट प्रोबेबली द विलेज इज अ बिग विलेज बिकॉज देयर आंट एनी शॉप्स, है ना। जब ढेर सारे लोग एक गांव में रहते तो शॉप्स नहीं होगा ना फिर। सही है। देख लिया ना, सोने का खाली आंख बंद किया जाए तभी पता चलता है कि सो रहे लोग। आंख खोल के भी सोते, पता चल रहा है ना आपको भी। मैंने साबित किया कि इन्हीं लोग ने आवाज दी थी ना, यस सर। अभी अग्री किए थे कि नहीं किए थे तुम लोग, खाली हाँ बोलो ना बोलो कि नहीं किए थे अग्री। तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर जो है, जो जिसको ट्रेन करना, वो जागा हुआ भी है ट्रेनिंग के लिए या सोया हुआ है। जिसको ट्रेन करने बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसको करने बैठे हो इस क्लास में। You are going to train your brain here, right? Is your brain awake or sleeping? I don't think so, because you said there aren't any shops in my village. Because most probably the village is a big village, right? Or you said, yes, sir. Yes, because it's a big village, there aren't any shops. Yes, sir. यही तो चल रहा था. And you want to say that your brain is awake. I wonder how big, how challenging, endeavors you can undertake. मुझे नहीं पता कि आप क्या क्या मुश्किल काम कर सकते हैं जब आप ऐसा दिमाग लेके चल रहे हैं, तो इस दिमाग के साथ जो अभी लेके बैठे हैं यहाँ पर, जिस स्थिति में अभी आपका दिमाग है, जागा हुआ सोया हुआ मुझे नहीं पता। कैसे बोले आप लोग ये चीज। कौन कौन बोला था, हाथ उठाएगा, है हिम्मत, गट्स है। डू यू हैव द गट्स टू रेज योर हैंड एंड से यस आई डिड इट। बोल दो कि कोई नहीं बोला था। बोलो बोलो हिम्मत करके कि नहीं सर कोई नहीं बोला। कोई हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं बोला। बुरा लग रहा है, एम्बैरेसमेंट हो रहा है ना, तो दिमाग को जगाओ, कॉफी पी के आओ ताकि ज्यादा समझ आए बातें मेरी। हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू कम हियर, अ कप ऑफ टी मे बी बिफोर you join the class, so that you are in a fully awake state. You're partially sleeping, I think. I can't believe I got you guys here. I don't believe it. फर्स्ट यू ऑल्सो अग्रीड, पहले तुम भी अग्री कर गए, ये भी अग्री कर गया, आगे बैठा हो फिर भी। फिर सेकंड टाइम में बोला फंस गए। नंबर 8, I'd like I'd like I'd like some cheese. Is there any in the fridge? I'd like some cheese. Is there any in the fridge? 9. There was some rain last night. There was some rain last night. She doesn't have no problems. I will gift her some. Number 2, complete the sentences with some or any and a word from the box. Number 1, complete the sentences with some or any and a word from the box. Number 1, would you like to listen to some music? I bought a new CD. 2, there isn't there isn't any food in the fridge. Sorry. There isn't any food in the fridge. Sorry. A starving friend, always a starving friend arrives and says, Kuch khilao na. Then you say, there isn't any food in the fridge. Sorry. Number 3, I need to put some petrol in the car. It is nearly empty. Not near empty, but nearly empty. Only a little bit petrol there is. It's nearly empty. 4, do you have any stamps? I have some letters to post. I have some letters to post. 5, 6. Do we have do we have any eggs? I could make an omelette. Do you have any eggs? I could make an omelette. 6. Can I have some chips with my steak?
Do we have any eggs? I could make an omelette. This could. Why do we have could here? Does it refer to the past time? No. Could I, could you होता रिक्वेस्ट में, कहाँ चले आए? जो पढ़ा है वो बहुत जल्दी भूलते हो तुम लोग। रिक्वेस्ट करने के लिए कुड आई कुड यू बोलना पड़ता है कि आई कुड यू कुड बोलना पड़ता है? जा क्लियर कर दो पहले। वहां क्या लिखा है? डू वी हैव एनी एग्स? आई कुड मेक एन ऑमलेट। ये कुड पास्ट टेंस है ऑफ कैन, पास्ट की बात हो रही है। हाँ या ना? सीधा डिसीजन लो और जवाब दो। और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बोलो आई कांट डिसाइड। पढ़ो आगे। डू वी हैव एनी, क्या पूछा? अंडा है। आगे क्या बोलेगा? जो बोलेगा वो पास्ट टाइम के बारे में बोलेगा कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बोलेगा? तो फिर बात खत्म हो गई, डिसीजन हो गया। ये खुद पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि बात पास्ट टाइम टाइम के बारे में नहीं हो रही है। ऐसे सीखा जाता है दोस्तों, एक के बाद दो, दो के बाद तीन करके। पहला लाइन देखा हमने, डू वी हैव एनी एग्स? अंडा है। फिर दो वर्ड्स बोल रहे हैं हम, क्योंकि हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। अंडा है। डू वी हैव एनी? यही दुकानदार से जाके पूछोगे अंडा है, तो नहीं पूछोगे डू वी हैव एनी एग्स। क्या पूछोगे? अंडा है। दुकानदार से पूछ रहे हो, कैसे पूछोगे? इंग्लिश में डू यू हैव एनी एग्स। बदल गया फट से, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। डू यू हैव एनी एग्स? ओके, घर पे पूछ रहे हो मम्मी से, अंडा है मम्मी? डू वी हैव एनी एग्स मॉम? राइट। डू वी हैव एनी एग्स? आई could make an omelette. This could is definitely not the, because the person who is asking about eggs will not say बनाते हम past में, right? वो अभी बात कर रहा है कि अगर अंडा होता तो हम क्या कर लेते? आई कुड मेक एन ऑमलेट। तो ये प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर अंडा होता तो हम क्या करते? ऑमलेट बना लेते। आई कुड मेक एन ऑमलेट। एक सिमिलर सिचुएशन दो ताकि आप ये कुड को और अच्छा सीख सके। यहाँ कैन नहीं है, पर समझना क्यों, ठीक है? वो ये नहीं बता रहा है कि मुझे अंडा बनाना, ऑमलेट बनाना आता है। वो अगर वो बताना चाहता मेरे दोस्तों, तो क्या बोलता कि मुझे अंडा बनाना आता है। आई कैन मेक एन ऑमलेट मेरे बच्चों, राइट? तो आप देखो, दो तीन जगह पे आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगा पाए। यू कुड नॉट अप्लाई योर कॉमन सेंस। वन, कि सर ये कुड क्यों है सर, ये आपका पूछना बनता था। क्यों? क्योंकि डू वी हैव एनी एग्स पास्ट टाइम के बारे में तो नहीं हो सकता। डू वी, डिड वी हैव एनी एग्स बात अलग है, कि अंडा था कि नहीं हम लोग के पास। लेकिन यहाँ पूछा है डू वी हैव एनी एग्स, अंडा है। तो ये प्रेजेंट टाइम। तो अंडा होता तो फ्यूचर में ही बनाते ना, बनाते तो पास्ट में तो नहीं ना। ऑमलेट बना लेते हम, हिंदी तो पता है ना कि हम ऑमलेट बना लेते अगर अंडा होता। तो अगर ऐसा पूछे कि मान लो किसी सिचुएशन में फंसे हैं, मान लो कुछ बनाने की बात हो रही, घर पे चार लड़के मिलकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तो उन्होंने अश्वी अश्वी को फोन करो, ठीक है? अश्वी मदद कर सकती है हम लोग की, राइट? ठीक है। इज अश्वी ऑनलाइन पूछा, मान लो किसने, शी कुड गाइड अस, शी कुड गाइड अस, शी कुड हेल्प अस, है ना? क्या बोलेंगे? शी कैन हेल्प अस में हो गया कि उसके पास क्षमता है मदद करने की। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के तौर पे। फिर से समझना, ये इंसान ये नहीं बता रहा है कि मुझे ऑमलेट बनाना आता है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर अंडा होता तो हम ऑमलेट बना लेते। हाँ। तो वैसे ही अगर अश्वी ऑनलाइन होगी तो वो हम लोग की मदद कर देगी। यहाँ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ना कि अबिलिटी। अबिलिटी समझते हो ना, करना आना। यहाँ करना आना नहीं, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि ये चीज हो सकता था, कि अश्वी ऑनलाइन होती तो हम लोग की थोड़ी मदद कर देती। इज अश्वी ऑनलाइन? शी कुड हेल्प अस, शी कुड गाइड अस, राइट? शी कुड
जैसे आई कुड मेक एन ऑमलेट, अगर अंडा होता तो, है ना। सिमिलरली अगर अश्वी ऑनलाइन, शी कुड गाइड अस। लेकिन हम उतना बोल नहीं रहे, हम खाली इतना बोल रहे हैं, इज शी ऑनलाइन, इज अश्वी ऑनलाइन, क्वेश्चन मार्क, शी कुड गाइड अस। खाली वो वाला हिस्सा बोल रहे हैं कि वो मदद कर देती है, अगर वो हम लोग को गाइड कर देती। आपको पल्ले पड़ रहा है दोस्तों। तो एक और सिचुएशन सिमिलर, you have to go to a fancy party where you have to wear a sari. Okay, you of course don't have a sari, you're single girls, unmarried girls don't have a sari. You have plenty of clothes but you don't have a sari. मम्मी भी चली गई है मायके, और वो अपना कहते हैं ना वार्डरोब का चाबी लेके चली गई है। मम इज नॉट हियर, मम इज, हर वार्डरोब इज लॉक्ड। आई कुड वेयर हर साड़ी, आई आई कैन और आई कुड, उसका साड़ी पहन लेते हैं। आई कुड, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है बच्चों। पहले मैं जो दो लाइन बोल के सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, उसके बाद ये लाइन ऐड करता हूँ हर बार। 3 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन सो फार। एक दिस वन, डू यू हैव एनी एग्स, डू यू हैव एनी, सॉरी, डू वी हैव एनी एग्स, आई कुड मेक एन ऑमलेट। ठीक है। 2, इज अश्वी ऑनलाइन, शी कुड गाइड अस। मान लो कुछ खाना वाना बनाने की बात हो रही है, अश्वी को खाना बनाता है, सबको पता है, शी इज अ गुड कुक, राइट। तो आपको लग रहा है कि रहती है ऑनलाइन तो गाइड कर देती है हम लोग क्या करें कैसे करें। ओके, वो नहीं, वार्ड साड़ी पहन के जाना है, साड़ी है नहीं, मम्मी भी नहीं है, मम्मी का वार्डरोब लॉक है, नहीं तो मम्मी का साड़ी पहन लेते। आई कुड वेयर, पापा कार लेके गए हुए, मान लो लड़कों जाना है मस्ती करने, पापा इज आउट विद हिज कार, अदरवाइज आई कुड टेक हिज कार। आई कुड, बात समझ में आ रहा है। ये सब चीज में जो चीज आप देख रहे हो ना, है ना। ओके, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिचुएशन समझ में आ रहा है। देखो मेरा मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि मैं ना बहुत सिक्योर टीचर हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि मेरा नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब नुकसान इस तरह से कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त होता है। समझ बन जाती है सीधे, कोई रटा हुआ याद नहीं रखना है, कोई रूल्स वूल्स याद नहीं, समझ बन जाती है एक। लेकिन लॉन्ग टर्म में आता है। मान लो दो कारपेंटर है आपके पास, एक जल्दी जल्दी कोई चीज ठोक ठाक के खड़ा कर देता है और एक सुंदर बनाने के में टाइम ज्यादा लेता है। तो आप लोग क्या होता है ना, उब जाते हो सुंदर बनाने, अरे वो देर लगा देगा, पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा सोचते हो आप। उसको काम कम मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिस्ट टाइप का है और बाकी मजदूर टाइप के है। तो टीचिंग में भी एक मजदूरी होती है, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर पढ़ाओ, लड़के को नोट्स बनाए घर जाए, ठीक है। और एक होता है एक्चुअल टीचिंग, जिसमें आर्ट आर्ट है एक तरह का, कि आपने अपने ज्ञान स्टूडेंट्स के दिमाग में इंस्टॉल किया, वो सच में हुआ। और एक होता है, फिर मैं बताऊं, हमेशा वो रटा। तो आप लोग क्षमता देखिए अपनी। पहले थोड़ी देर पहले आप लोग सोए हुए थे, आप लोग ऐसी जगह फंसे थे जब मैंने कहा था देयर आरंट एनी शॉप्स इन माय विलेज, प्रॉब्ली माय विलेज इज अ वेरी बिग विलेज, और आपने कहा यस। ये तुरंत बोलते नो सर, बिग विलेज विल हैव अ शॉप। जहाँ बड़ा विलेज होगा वहाँ ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो दुकानदारी चलेगी, इसलिए शॉप्स होंगे। If it is a very small shop village, only then there aren't any shops, because survive नहीं कर पाएगा बेचारा शॉपकीपर। पर आपने इतना नहीं करा था, तो फिर मैं दोनों तरफ से समझता हूँ कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो जो दिमाग लगा रहे हो, तो फिर मेरा ये खुद वाला जो एक्सप्लेनेशन है बहुत काम आ जाएगा। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कोई रूल बताया मैंने, कोई रूल बताया है, बस एक सिचुएशन दे रहा हूँ। तीनों सिचुएशन में एक सिमिलैरिटी है कि इंसान एक चीज के बारे में पूछ रहा है, बात कर रहा है, कोई एक सिचुएशन बना रहा है, अगर वो सिचुएशन हो तो ये चीज हो जाए। ऐसा चल रहा है ना। मॉम इज नॉट हियर, हर वार्डरोब इज लॉक्ड, आई कुड वेयर हर साड़ी, पापा भी नहीं है, उन्हीं से पैसा ले लेते, आई कुड borrow money from him, पापा इज नॉट हियर। दूसरा सिचुएशन, योर पापा इज हियर, यू कुड borrow money from him, पापा इज, योर पापा इज हियर,
तुम्हारे पापा तो यही है, उन्हीं से पैसा ले सकते तुम। यू कुड। प्रोबेबिलिटी ये नहीं कि तुम्हें क्षमता है पैसा लेने की। यू कुड बोरो मनी फ्रॉम हिम। प्रोबेबिलिटी के लिए कुड यूज होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी तो एक ऑप्शन है कि पापा से पैसा ले लो। यही हुआ ना, पापा से पैसा ले सकते हो तुम, मतलब ये भी वन ऑफ दी ऑप्शंस है। तो जो ऑप्शंस बताने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। विल स्टडी दिस अगेन in unit 10 or 11. We will study this again. Good. And in the pre-intermediate class as well. तो यही है, थोड़ा थोड़ा जगह बनाना। कोई रूल चला दिमाग में, एक सिचुएशन चला है कुड का, एक एक यूज समझ में आया। कुड को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बताने का। फोन नहीं लग रहा है यार, व्हाट्सएप कॉल कर ले। यू कुड, ऑप्शन हुआ ना एक, यू कुड व्हाट्सएप कॉल हिम, यू कुड। अब बताओ, तुम्हें बोलने के लिए ये दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं, जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, कि कोई रूल स्ट्रक्चर कोई ग्रामर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बोलते समय? यही ना कि सर ने बोला ऑप्शन बताने के लिए, तो ये भी तो एक ऑप्शन है। व्हाट्सएप का टेक्स्ट करना उसको। यू कैन टेक्स्ट हिम, ये भी एक ऑप्शन, टेक्स्ट कर सकते हो तुम उसको। हिंदी में कर सकते हो, आ सकता है, लेकिन वो कैन नहीं है, क्योंकि यहाँ अबिलिटी की बात थोड़ी हो रही। कैन टॉक्स अबाउट अबिलिटी। यू हैव स्टडीड दैट, आई कैन स्विम, राइट। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी। ये भी एक चीज की प्रोबेबिलिटी है कि इसके भी चांस है, ये भी कर लो, राइट। कहाँ है? अभी तक यहाँ नहीं होगा। वो अपने दोस्त के घर पे, वो अपने दोस्त के घर पे होगा। इंग्लिश, he could be he could be at his friends, he is at his friend's home, he is at his friend। ये तो डायरेक्ट बोलना हो गया कि है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताना है, बताना नहीं है, हो सकता है कि होगा। he could be at his friend's home। तो अगर आप में से कोई अभी भी इंटरेस्ट बचा के रखे हुआ इंग्लिश सीखने में, तो घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग देख के, क्योंकि आज तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और इससे अच्छा तो नहीं बता सकता था। डू वी हैव एनी एग्स, आई कुड मेक एन ऑमलेट। यहाँ कोई रूल से आने की जरूरत नहीं। समझ में आई आपको? एक सीधा सीधा सिचुएशन, 4 5 एग्जाम्पल दिया है मैंने। उन 5 एग्जाम्पल को 5 बार 4 बार पहले खुद ही उन्हीं एग्जाम्पल को सोचते रहना, ताकि जल्दी से छठा एग्जाम्पल मत सोचना नया वाला। नो 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 नो, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। वही बार बार तुम बोलने लग जाओ ना, पांचों को बिना रिकॉर्डिंग दोबारा देखे, मतलब इतना बार देख लो कि दिमाग में आ जाए, वही 5 एग्जाम्पल बार बार बोल दे, तो समझ में आ जाएगा कि छठा कैसा बनेगा। वो अपने आप गाइड करेगा दिमाग तुम्हारा। 6, कैन आई हैव some chips with my steak? It's a request. That's why any is not good. Can I have some chips with my steak? 7, I met some friends from school last night. I met some friends from school last 8. I'd like some ice in my water, please. How many, how much? Easy. Again, this decision is based on the noun is countable or uncountable. Students. How many students? Countable. How many students are there in your class? 20? 2. How much homework do you get? Too much. 3. How much is a cup of coffee and a piece of cake? कीमत जानने के लिए कौन सा क्वेश्चन? How much? How much is a cup of coffee and a piece of cake? How much is a cup of coffee and a piece of cake? Combo है, combo. It's a साथ आता है. A cup of coffee and a piece of cake together for £5, €5. Okay. How much is a cup of coffee and a piece of cake? It is €5. It is 4. How many people live in your house? 5. Me, my brother and sister, and my parents. 5. How much coffee do you drink a day? 2 or 3 cups.
How many languages can you speak? 3. Reading section. The chef who can't eat his own food. You read that story? Read about the chef with a fear of food. A chef with a एक ऐसा शेफ जिसको अपने खाने से डर लगता है. The chef with a fear of food. Underline the correct answer. Andrew Foster, number 1, works in a restaurant in Italy. One option. Another option is Andrew Foster works in an Italian restaurant in England. Which is true? Say the whole sentence. In England. He works in an Italian restaurant in England. 2. He cooks all sorts of. That's true. He cooks all sorts of food. Pasta, fish, curry, fish, everything. Dessert, right? He cooks all sorts of food. Sorts means everybody. He cooks all types of food, all sorts of food. 3. He only likes eating biscuits. 4. सुना बिस्किट 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 पढ़ा है ना? सुना है ना? अरे यार, ये हमारा देश महान बन रहा है. बिस्किट इस अच्छा, उसका क्या बताया था? हाँ हाँ, अच्छा. जैसे वो खुद अनपढ़ है, सबको कह रहा है मत जाओ स्कूल, राइट? और लड़की होते होते लड़का हुआ है वैसे. चेहरा देखते हो उसका? बाल वाल देखते हो? उसके ज्यादातर फॉलोअर्स तो होंगे वो वाले टाइप के. हाँ. लड़की होता तो फिर शायद मैं सुनता उसकी बात तो. ओके दोस्तों, वापस आते हैं. बिस्किट बिस्किट. महान. Where were we? Were- four. Number 5. No, number 4. Every day he usually eats biscuits. 5. If he thinks about other food, he feels ill, not excited. Yeah. And when Sajid thinks about his marriage, he feels excited. Right? When Sajid thinks about he feels excited. Yes. क्या बात है, मेरा भी हो सकता है. Okay. Number 6. He would love to. दो options है. He would love to cook lots of food. He would love to taste what he cooks. He would love to taste what he. मन तो उसका बहुत करता है. He would love to taste. He wants to taste what he cooks, but he can't. यही पढ़े ना हम लोग. चाहता है बेचारा कि खाए, but he can't. If he would love to taste what he cooks. 7. He would like to eat everything. He would like to eat everything. मन तो उसका करता है सब कुछ खाने का. He would like to eat everything का हिंदी क्या हुआ? उसका मन करता है. He wants to eat everything. He would like to eat everything. 8. One man on the TV program can't kiss his girlfriend because she doesn't eat. She doesn't eat meat. She's a vegetarian. The girlfriend is a. What a coincidence.
of 4 billion women, he found a girl who's a vegetarian. And his situation is he only eats meat, 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 all the time meat. God's our first plan was to send him here as a tiger. Okay, but then God changed his plan and he said, जा जा इंसान बन जा. तो शुरू शुरू में वो जो था ना टाइगर वाला, टाइगर्स ओनली ईट मीट, अब बन गया वो साथ में आदमी. अब बेचारा रह गया थोड़ा सा. ही ओनली ईट्स meat, 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 meat all the time. And then God wanted to do another mazak with him. He gave him a girlfriend who is a vegetarian. Superb. मजाक हो तो ऐसा हो. Brush your teeth, boy, every time. Okay. स्कूल नाश्ता कर लेगा, ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस जाने के पहले लोग अपनी वाइफ को किस करके जाते हैं ना. बोले एक सेकेंड, गुड बाय डार्लिंग. Andrew loves cooking, but he can't eat his own food. Andrew loves cooking, but he can't eat his own food. Poor chap, poor chap. Two, he doesn't like eating other food, only biscuits. Three, he would like to eat everything like other people. He wants to. Four, he would like to taste what he cooks, but poor chap can't. Now, taste. एक होता है TEST टेस्ट, और ये टेस्ट, TAST टेस्ट, है ना. ये कैसे पढ़ते बेटा? टेस्ट. और TEST टेस्ट, टेस्ट. PEN pen, and PAIN pain. All right, yeah, you guys are getting that right. Good. Let's read. Andrew Foster is a chef. Andrew Foster is a chef. Vinay Shankar Soni is a teacher. Right. Any problems? Ayat is a student. Bihar Sharif is a town. तो किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है तो ऐसे करके दे सकते हैं, है ना. किसी चीज के बारे में बताना होता है, कोई चीज क्या है या कोई चीज कौन है ना. Andrew Foster is a chef in an Italian restaurant. In an Italian restaurant in the north of England. Bihar Sharif is a town in Bihar. Right? Any problems? ऐसे करके बता रहे हैं, कुछ बताना है. Andrew Foster is a chef in an Italian restaurant in the north of England. He makes delicious food. He makes delicious food. Foods नहीं लिखा ना? No. He makes delicious food. Food is uncountable normally. जैसे fruit, वैसे ही food. जो भी कैटेगरी वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल हो जाता है. मैंने बताया आपको, फर्नीचर, चेयर आ गया उसमें, बेड आ गया उसमें, सब चीज आ रहे, तो फर्नीचर इज अनकाउंटेबल. देन आई टॉट यू अनदर वर्ड, रिमेंबर, ट्रैफिक. थैंक यू तबरेज. तुम्हारा दिमाग हमेशा मुझे इम्प्रेस करता है बेटा. अच्छे, जिसका दिमाग अच्छा रहता है उसकी मेमोरी भी, हाँ, वो याद रख लेता है. और उन लोगों की खासियत क्या है, तुम जैसे लड़कों की खासियत क्या है, कि तुम जो काम कर रहे होगे ना, तुम उस समय उसी में घुसोगे. मतलब उस समय वही चीज चलेगा तुम्हारे दिमाग. ये तुम्हारे अंदर एक अच्छाई है, जिसको नेचर को या गॉड को, जिसको चाहो तुम थैंक्स बोल सकते हो इस चीज के लिए. कुछ लोग ना चाह के नहीं कर सकते तबरेज. कुछ लोग ना पैदा ही ऐसे हुए हैं कि वो जिस काम में रहेंगे ना, उसको छोड़ के हर चीज उनके दिमाग में चलेगा उस समय. इसको कहते हैं पुअर फोकस, अटेंशन स्पैन. एक चीज में 5 मिनट समय दिए ना, 5 में 7 मिनट नहीं कर पाएंगे, वो थक जाते हैं, फिर दूसरी चीज लाएंगे दिमाग में. अच्छा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. टॉक टू अ चाइल्ड, ए 5 year old child, a 4 year old child. एक टॉपिक उठाओ कोई भी.
उस टॉपिक पे बात करो। 1-2 मिनट बच्चा बात करेगा, तुम उसको खींचो, वो नहीं खींचना चाहेगा, वो बंद करना चाहेगा, वो फिर दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहेगा। दिस इज ए स्मॉल short attention span. So small children have short attention span. And as they grow up, as they grow older, their attention span also becomes longer and longer. But not with everybody, unfortunately. Some people fail to grow their attention span. They grow physically, age-wise, body-wise, but their attention span remains the same. Poor them. वही होते हैं वीक लोग, जिनका अटेंशन स्पैन ग्रो करना बंद कर देता है, उस स्पीड में नहीं ग्रो करता जैसे बाकी। अटेंशन स्पैन, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब अटेंशन स्पैन नहीं ग्रो करेगा तो एक मुद्दे पे वो 2 मिनट 3 मिनट बात। अच्छा, व्हेन यू गाइस वर स्मॉल यू हैड शॉर्ट पोएम्स, 4 lines, 6 lines. But as you went into senior classes, the poems became 12-line poems. Your stories were short stories, 10, 12 sentences stories when you were kids. And when you became older, then your stories became 2-page stories, 3-page stories. एक ही मैटर है, लंबा चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? अटेंशन स्पैन। Adults normally have longer attention span than kids, but not all adults, unfortunately. तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारा प्लस पॉइंट है। अब इसका फायदा तुम उठाओ, मेहनत करके जिस भी फील्ड में चाहते हो आगे चले जाओ, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन। पढ़ाया तो मैंने सबको था, फर्नीचर, ट्रैफिक, और तीसरा फ्रूट, एप्पल्स, बनानास, ये सब साथ में आ गए। क्या हो गया? फ्रूट, अनकाउंटेबल। आज एक और वर्ड है, फूड, जैसे फिशेस, सॉसेज, पास्ता, डिजर्ट, सब चीज मिला करके सब क्या है? फूड है। फूड इज अ ग्रुप। ओके, ही मेक्स डिलीशियस फूड। यहाँ फूड इज अनकाउंटेबल। ही मेक्स डिलीशियस फूड, फिश डिशेस, sauces, pasta, and desserts. If you guys had been present in my Sunday class the day before yesterday, in the evening 3 o'clock batch, articles class, array, you wouldn't realize some of the questions were from the elementary course books. And the students were embarrassed a little bit that they didn't know, because those questions were article questions from the elementary books, unit 1, 2, 3. So just bring your best focus when you are reading. इसमें से सब चीजें दिमाग में ले जाइए, बार बार पढ़ के। बार बार पढ़िएगा तो होगा। एक बार पढ़ के कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। हम लोग संस्कृत एक बार पढ़ते थे बचपन में और कहते थे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं उसको 5 बार 6 बार पढ़ता था तो कुछ बेहतर समझता था। कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते थे यार, ऑब्वियसली। तो रीडिंग द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स कैन हेल्प यू ग्रो योर अंडरस्टैंडिंग, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बोर हो जाता है आदमी एक से दूसरी बार एक ही चीज को पढ़ने में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं खाली कहानी के सब्जेक्ट के लिए नहीं, उसमें कैसे लिखा है ये जानने के। He makes delicious food, fish dishes, sausage, pasta, and desserts. He has a lot of furniture, beds, chairs, tables. समझ में आ रहा है? He makes delicious food, fish dishes, sausage, pasta, and desserts. इसमें से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल? Sausage, countable, plural. Fish dishes, plural. Desserts, plural. Pasta, uncountable. तो वो भी pastas होता. Okay? Fish dishes, sausage, pasta, and desserts. But he can't eat any of it. But he can't eat any of it. It refers to delicious food. He can't eat any of his delicious food. He can't eat any of the delicious food he makes. Right? He makes delicious food, but he can't eat any of it. He makes delicious food, but he can't eat any of it. अच्छा, यहाँ फूड की जगह शूज कर दो और मेक्स की जगह, हाँ मेक्स कर रखते हैं। He makes beautiful shoes, but he can't eat
He can't wear any of ये जो 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 देम बोल रहे हैं ना, उनके दिमाग में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका ऑलरेडी, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई इट नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शूज। ये पहला स्टेप है एक्चुअली इंग्लिश में कि आप प्रोनाउन सही बोलने लग गए हैं। शूज के लिए इट कैसे बोल दे, फील ही नहीं आएगा। तो जो फील आने लग जाए ना, तो फिर समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हो। बिकॉज आवर एम इज टू स्पीक इंग्लिश व्हेन वी आर स्लीपिंग, नॉट व्हेन वी आर अवेक। आवर एम इज टू स्पीक इंग्लिश व्हेन वी आर अनकॉन्शियस, not when we are only conscious. So it's not about deciding what is right, what is wrong. It's about feeling what is right. Okay. He can't eat any of it. He has a fear of food. He has a fear of food. उसको खाने से डर है। He has a fear of food. अजीब आदमी। It's the first time ayat you're hearing something like this, right? That somebody has a fear of food. खाने से कौन सा डर, खाना क्या छलांग लगा देगा तुम पे? He has a fear of food. These are, nature's weird things happen. Somebody has a fear of, do you know there are people who have a fear of buttons? Buttons. When they buy clothes, they don't buy clothes with buttons because they have a fear of buttons, sir. There are people who have fear of balloons. When there are balloons around them, they don't go there. They look at the balloons and feel very nervous. Their fear is anytime they will burst, they will pop. उनको डर लगता है कि अभी फट जाएगा, अभी फट जाएगा, उनके मन में चलता रहता है. So the moment they see the balloons, they start to feel that fear that फट जाएगा, और उनको इस चीज से प्रॉब्लम है. So phobias are amazing and absolutely unbelievable. There are all kinds of phobias. Phobia means irrational fear, बेटा. कौन सा fear? मतलब logical fear is okay, you should be afraid of some things, but if you are standing on a big roof, a high tall building, and you are on the roof and it has a boundary, okay, but still you can't look down because you have a fear of height. अरे भाई तुम सेफ है भाई, तू रेलिंग पकड़ के खड़ा है, तू नहीं गिरेगा, रेलिंग इज हाई, स्टिल यू डोंट फील कंफर्टेबल लुकिंग डाउन because you have a fear of height. Irrational fear. Inside your house, you have a pool which is only 3 feet deep, and the person is 6 feet tall and still doesn't want to go inside the pool. Why? Fear of water. Irrational. So that is called phobia. And in English, each phobia has a name. Aquaphobia. That is fear of water. And there are so many similar. Let's continue. He has a fear of food. Do you have any irrational fear? What is your fear? You have a fear of height. She's also afraid of height. She has a fear of height and fear of water. Now, when I was young, I had a very bad fear of height. I still do. I still have a very bad fear of height. But I am challenging it slowly and slowly in a safe way. The jhula, the big wheel. When I was a kid, I didn't want to sit on it. But now I can sit and I'm okay. So you will also need a certain attitude. You can overcome your phobias. With the right kind of help, it's possible. There are psychologists who can help you overcome your fear. And sometimes you have to help yourself. So I did not need a psychologist to overcome my fear of height. I will say I am only afraid of height
when there is a real risk now. Otherwise, I know still feel afraid of height. But if I'm safe, then I like taking that challenge. For example, I went to Rajgir zoo safari, and there is this gliding thing over the rope. You are hanging there 100 feet deep. There is a height, I think, and you go on over it. So of course it was challenging for me, but I took that risk because I knew there was no risk. I overcame my fear because I knew it was safe to do. So it was difficult for me. Other people could do it easily, but I challenged myself, I pushed myself, and I did it. So I want to ensure that I'm safe. Bungee jumping is my last, challenge that I want to take someday in the future, maybe. This will be the ultimate thing, bungee jumping. Anyways, he can't eat any of it. He has a fear of food. When I was 18 months old, I stopped eating. When I was 18 months old, I stopped eating. Don't talk to each other. When I was 18 months old, I stopped eating. आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हैं. मेरा फ्रेंड हमसे बातचीत करना बंद कर दिया. My friend. हम इंग्लिश सीखना छोड़ दिए, बंद कर दिए. Going to the class, learning English, right? They stopped eating. Says Andrew. They stopped eating, says Andrew. The 27-year-old chef, एंड्रू के बाद देखना कैसे लिखा है. एंड्रू के बाद कॉमा है. The 27-year-old chef at the Sale Paper Restaurant in County Durham. इंग्लिश में से करके इंफॉर्मेशन देते हैं. When I was 18 months old, I stopped eating, says Andrew. The 27-year-old chef at the Sale Paper Restaurant in County Durham. So we have a lot of information about Andrew. How old is he? Where does he work? In an Italian restaurant. Does the restaurant have a name? Yeah, what is it called? Or Sale Pepe restaurant, I don't know. Where is that restaurant? Where in England? What is that place called? County Durham. See, doctors told my mother to give me nothing to see. Doctors told my mother to give me nothing to see. Doctor said, don't give him anything to see. यही कहा था डॉक्टर ने. Don't give him anything to see. That what he would eat, what he would eat. जो खाएगा ना मत देखने दो इसको. Don't let him see what he eats. Don't let him see what he eats. Don't let him see what he eats. जो खाना खाता है उसको देखने. Don't let him see what he eats. टीचर बोलता है अपने दोस्त को देखने मत दो तुम क्या लिख रहे हो. Don't let your friend see what you are writing in an exam. Teachers keep saying this. Don't let your. कैसे चलेगा भाई. तीनों हाँ कहानी बना रहे हो. अच्छा नहीं है. चेहरे पर रख लोगे तो दिखेगा नहीं क्या. मशरूक नीचे करो. मशरूक. हाँ ये. Don't let him see what you are writing. जो तुम लिख रहे हो मत देखने दो अपने दोस्तों को. Don't let your friends. To see नहीं बोलते बेटा. Don't let your friends see. Don't let your friends what you are
अब कुछ दोस्त होते हैं टिफिन में बढ़िया खाना लाएंगे ना, तो आपको देखने नहीं देते हैं। दे डोंट लेट यू सी what they have in the lunch box when they have something tasty. Hmm. Doctors told my mother to give me nothing to see what I would eat, but I only ate biscuits. Why did the doctor say this? Because a lot of children have this tendency. They don't like the food, the look of the food, the appearance of the food, and say, I don't like that. Yeah, I was. If you don't, no, as small kids, you might have seen moms often do this. Dekho, dekho, udhar kawa dekho. And when the baby is looking at the bird, then mother puts the food secretly in the mouth of the baby and the baby eats. And if she doesn't do it, doesn't distract the baby, he or she refuses to eat the food. Why does the mother distract the child, the baby? Because the baby is distracted. He doesn't have a problem with the food, with the taste. He has a problem with the look of the food, the appearance of the food. If he looks at the food, no, 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 and he starts crying, no, I'm not eating. I don't like that. But the taste is good because when the baby is looking at something else, he is eating the same food. He doesn't mind the food. भाई आपको दूसरा तरफ दिखा के मिट्टी खिला सकता है कोई? No, because you don't like the taste of that thing, isn't it? So children often do this. अगर मैं ये बता रहा हूँ तो आपको भी ये चलना चाहिए था कि अच्छा इसीलिए बोला होगा डॉक्टर. Doctor told his mother not to give him to see what he would eat, but he only ate. इसका मतलब his problem was not a normal problem, because normally when children are distracted they eat their food, but this guy still ate only biscuits. It means he had a genuine problem. He had a real problem. He eats 2 packets of biscuits a day. Now present पे आ गए हम लोग, क्या करता है उसका लाइफ कैसे चल रहा है. He eats 2 packets of biscuits a day and sometimes some toast. Toast is uncountable, इसलिए some toast, ना कि toast. Toast is uncountable. देख सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं. He eats 2 packets of biscuits a day and sometimes some toast, some crisps and some cereal for breakfast. बस यही खाते हैं. Cereal, वो क्या बोलते हैं, दलिया, दलिया, some cereal for breakfast. Nowadays people buy it in boxes, put it in milk, put the milk, cereal. There are all kinds of cereals. If I just think of eating other food, अगर हम सोच भी ले, if I just think of eating other, I feel anxious. Anxious is a noun, anxious is a verb, anxious is an adjective. तुरंत पता चल जाएगा क्या किस कैटेगरी का वर्ड है भाई. I feel anxious. नहीं पता चल रहा है, आ जाएगा अगर सोचोगे कि कैसे करना है. तो कैसे पता करते हैं, ये देखते हैं कि वो वर्ड का जो पोजीशन है सेंटेंस में, क्या वो पोजीशन किसका. आई फील के बाद आप क्या बोलते हैं, कुछ बोलिए, कुछ एंग्शियस ना बोल के कुछ और बोलिए. आई फील, खाली जब भर दीजिए. आई फील हैप्पी, आई फील सैड. ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव. ये भी अब जब एडजेक्टिव है तो ये किस टाइप का वर्ड है, किसी को डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, खुद में ये कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब चीज होता है वो नाउन होता है. तो ये डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है. किसी को डिस्क्राइब करना है, एंग्शियस बोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं. द टीचर लुक्स एंग्शियस, माई फादर इज एंग्शियस. उसने कहा आई फील एंग्शियस. अब ये कैसा फील करते हैं एंग्शियस, एंग्री तो समझ में आता है. तो when you start to sweat, when you start to tremble, when you start to feel nervous and your voice starts trembling, your hands start sweating, your face starts sweating, it means you are anxious, you are feeling. So in what kind of situation people feel anxious? High risk situation or normal situation? Imagine that in a family, the father is not home and it is 12 o'clock and his phone is switched off.
then everybody will start to feel anxious. ये worried से आगे का बात है. Worried में भी आदमी टेंशन लेता है, लेकिन anxious में फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, थरथराना, आवाज कर, नर्वस, पसीना, all this, then we call it anxious. Worried is one thing. Okay, worried से आगे चले जाओ. When the police asked him to visit the police station for a normal inquiry about the kidnapping, he hesitated to go. And when he finally went, he looked very anxious. This made the police doubtful. He looked very anxious. तो प्रैक्टिस करना, मैं जितना सिंपल बोलता हूँ जानबूझ के, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम उतरता जाए फ्लो. ठीक है, मैं अगर वो सिखाना चाहूँ ना, तो मैं हर बात में कुछ नया नोट्स बनवाने वाला, तो मैं 90 मिनट्स में इतनी नई चीज़ सिखा सकता जो लोग 3 घंटे में नहीं सिखा सकते. इतना नोट्स बनवा सकता हूँ हर बात पे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर एक क्षमता डेवलप करें, कैसे वर्ड्स जा रहे हैं. जो मैंने वो एंग्शियस वाली एग्जांपल दी, पुलिस वाली, सुन लेना रिकॉर्डिंग में दोबारा, लेकिन 2 बार 3 बार सुनना, कितना इजी फ्लो है उसका लैंग्वेज का, ताकि आपको कनेक्ट करने के लिए मिले. एक वो सेंटेंस को दूसरे कनेक्ट सेंटेंस से कौन सा वर्ड कनेक्ट किया, किसी में दिस आया, देखना, गौर करना. आज के लिए इतना ही. विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, व्हाट विल यू डू एट होम? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. पेज नंबर 53.